Ladies and gentlemen, this is known as personality, and that's the aura. Gulzar Saab, welcome. I have to read, but I really can't at the moment. Now, this session is on the topic that's Hindi from the Heart, a book launch from Gulzar Saab. His latest book and the talk from Mrinal Pandey. Thank you so much, ma'am, for joining us. We have a personality who does not need any introductions. And if I do, there'll be a bad part on me because I really can't sum it up. It'll probably take me an hour and a half to just keep on talking about the personality that we have here. So, Mr. Gulzar Saab, a man of many facets, a poet, filmmaker, lyricist, and a writer. He has received both national and international acclaim for his work in his creative repertoire and also plays, ballet, music albums, and serials. He's been a recipient of the prestigious national award not once, not twice, but 7 times, and not to speak of the 21 Filmfare Awards that he's won. His books have been translated into many languages. He's won great awards. He's won awards for the best Urdu writer in 2002 and was conferred the Padma Bhushan in 2004. And not only this, he's also been awarded the Oscar Academy Award for the best original song, Jai Ho, Slumdog Millionaire in 2009. He's a recipient of the 27th Indira Gandhi National Integration Award in 2012. He's presently the Chancellor of Assam University, and his creative endeavor still goes on. So welcome, sir. A very warm welcome to you. And we also have a very eminent lady, Mrinal Pandey, who is an Indian television personality, journalist, and an author. Until recently was the chief editor of the Hindi daily Hindustan. She is now a chairperson of Prasar Bharati, the apex body of official Indian broadcast media, and she also hosts a weekly interview show called Baaton Baaton Mein on Lok Sabha TV. She has written several books centering around women, which include Devi, Tales of the Goddesses in Our Time. The subject is Women and My Own Witness. She spent several years on the National Commission for Self-Employed Women. Thank you, ma'am, for joining us. And ladies and gentlemen, this is the time when you sit back and have a great time with both the eminent personalities. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी अंग्रेजी के बाद 2 लफ्ज हिंदुस्तानी में बोल लूं आपसे। मृणाल जी, you know her as a writer, a prolific, great writer. वो हिंदी में भी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती हैं। मैं उन्हें दोनों ज़बानों में पढ़ता हूँ, लेकिन ये कहते हुए जरा सी झिझक आती है कि अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ता हूँ, हिंदी में उन्हें कम पढ़ता हूँ। If I may quote you, आपने खुद अपनी किताब के पीछे लिखा है, जुबान सीखने की जरूरत किसी भी उम्र में पड़ सकती है, ऐसे ही जैसे इश्क किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ दूं, जो यूपी के एक बहुत पुराने चीफ मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह, उनको उनके किसी मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा था कि बुढ़ापे का इश्क बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर उससे कोई बढ़िया बात निकलती है तो कहना क्या। नहीं, बस वो सिर्फ ये है कि वाकई मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि बुढ़ापे का इश्क जरा खतरनाक होता है, लेकिन वो तब है जब आदमी खुद को बूढ़ा मान ले। क्योंकि जब तक इश्क हो रहा है तब तक आप बूढ़े नहीं हो सकते। अच्छा, बातचीत की शुरुआत हमसे कहा गया था कि गुलजार साहब की नई किताब आई है, हिंदी फॉर हार्ट। इसके बाहर लिखा हुआ है, दिल बच्चा है जो कहता है सब सच्चा है। ये जो किताब है बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन अजीब सी बात है गुलजार साहब कि बच्चे हमारे साहित्य से भी, हमारी फिल्मों से भी, सचमुच के बच्चे जी, फिल्मों से भी, साहित्य से भी, खेल के मैदानों से भी, कॉलोनी के पार्कों से भी गायब होते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, खास तौर पे वैसे ये बच्चों के लिए तो है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका आपने अभी अभी जिक्र किया है कि मुझसे हुआ नहीं, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि मैं अगर किसी
तमिलियन लड़की से मुझे इश्क हो जाए तो मैं तमिल कैसे सीखूंगा, या केरला की किसी लड़की से इश्क हो जाए तो मुझे मलयालम तो सीखनी पड़ेगी। तो मुझे वो ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बैट से शुरू ना करना पड़े, क्योंकि बड़ा हो चुका हूं। तो मैंने ये किताब उनके लिए लिखी थी, दोस्त जिनके दिल में अब भी वो जगह है, वो कायम है। तो वो अगर सीखेंगे तो वो किस तरह से सीखेंगे जबान। तो उन बड़ों के लिए ये किताब इसलिए लिखी और इसलिए बनाई कि भाई देखो, जबान किसी भी उम्र पे सीखी जा सकती है, सीखने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे किसी भी उम्र में हो सकता है। गॉसिप मॉन्गर्स के लिए भी अच्छी हो सकती है। जैसे प से हर एक जो हमारी 12 खड़ी में जितने भी शब्द हैं, सबसे एक एक छोटी छोटी 3 लाइन की कविता है। प से जो कविता है, पाजी एक पतंग उड़ी है, पता नहीं है क्या है मन में, पंछी के संग प्रीत जुड़ी है। हाँ। अब वो पतंग को उड़ते उड़ते एक हाइट पे किसी पे जाके उसको ढील देते गए, वो मालूम हुआ कि वो मेरे चलाने से नहीं उड़ रही है, जिस तरफ मैं मोड़ता हूं उधर नहीं मुड़ती है। तो देखा कि वो एक पंछी की तरफ जा रही है, और पंछी को ये लगता है कि ये भी कोई ये पतंग जो है ये भी पंछी है, और इसे ये लगता है कि वो भी पतंग है, और उन दोनों में इश्क हो गया इस मामले में। तो इसलिए प से सीखने के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट माँ बाप है वो ये कह सकते पाजी हैं, एक पतंग उड़ी है, स्ट्रिक्ट पता किस्म के नहीं माँ बाप क्या है इसको मन में। कहेंगे कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। है? नहीं, मैं बल्कि जिनके दिल अगर कहीं सूख गए हों या रूखे हो गए हों, और ऐसे शहर में जो बड़ा मशीनी शहर है, तो मैं उन्हें वापस उन बच्चों को कह रहा हूं कि कम ऑन गेट इन लव, कम ऑन, जरा इश्क करो, क्योंकि वो इश्क जिंदगी से भी होता है और सबसे होता है, अब जानते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो एक मशीनी जिंदगी है, ये सिर्फ मुंबई की खासियत नहीं है। सारे शहर हमारे अमूमन छोटे हों या बड़े, तेज रफ्तार होते जा रहे हैं। बच्चे आते हैं, उनको इक्के के घोड़े की तरह से ट्यूशन में जोत दिया जाता है, या टेलीविजन सीरियल से देखते रहते हैं, या फिर अपना बैठ के गूगल और पता नहीं क्या क्या कमबख्ती के मार वो सब विकिपीडिया वगैरह से सीखते रहते हैं। जो चीज़ें दादी नानी या दादा नाना सिखाया करते थे, अब आपने कहा थाली भर के धूप रखी है। थालियों में किन घरों में खाना खाया जा रहा है आजकल? धूप कितने घरों में आती है कि वो थाली भर के लगे। इसी तरह पतंग की आपने बात की, पतंग से जुड़े हुए इतने लफ्ज हैं, छुटैया, मंजा, ढील देना, कनकौआ, काटना, ये सारी चीजें जो हैं। आपकी फिल्म है हुतू तू तू, उसमें अब कबड्डी में जो हुतू तू तू, अब कबड्डी खेलना ही बंद हो गया बच्चों का, चेसी खेलने वही बहुत है। तो इन सब पर थोड़ा सा आप। नहीं, एक और चीज का जिक्र अच्छा है, मुनासिब है और जरूरी है कि इनकी तस्वीरें जो बनाई गई हैं, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, वो रीना ने बनाई हैं, रीना सिंह। ये कनाडा में अब पेंटिंग और पोइट्री बच्चों को सिखाती हैं स्कूल में। तो उन्होंने जो तस्वीरें भी बनाई हैं उस हिसाब से कि वो कल्चर का इनके साथ जिनका शायरी में जिक्र हो रहा है, ताकि वो उसी तरह से वो कल्चर वो सभ्यता उसी तरह से झलकती रहे। तो उनकी पेंटिंग्स का मैं साथ में जिक्र कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी इस किताब के अंदर। और बाकी ये जो आप पूछी हैं कि नाना और नानी जो कहानियां सुनाया करती थी, नाना लोग बहुत कम भागीदारी लेते हैं। नाना का जिक्र नहीं करता कोई भी, दादी और नानी का ही जिक्र करते हैं, माओ का ही जिक्र करते हैं, कोई बाप का जिक्र ही नहीं करता उनके। तो मुझे अक्सर अफसोस होता है कि मैं नाना की हैसियत से इतनी किताबें लिख रहा हूं, तो कोई नाना का भी जिक्र करे कहीं। तो लेकिन ये कि अक्सर ये, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि गाने जो जिस तरह से अब आजकल जिस जबान में लिखे जा रहे हैं, मैं उसके बावजूद कि अगर टैंटड़ांग हिट हुआ है तो जरा उसकी भाषा पे गौर कीजिए। वो चला रात की गुल्लक तोड़े, अब वो गुल्लक ही नहीं किसी को याद रहता। तो मैं कोशिश ये होती है कि इन गानों में, गुल्लक तो खत्म ही हो गई है, अब तो सब मेटल के सेफ बॉक्सेस होते हैं बच्चों के पास भी। तो गुल्लक जो होती थी, जिसको कि माँ कभी घर पर जरूरत पड़े तो फट से फोड़ के पैसे निकाल लेती थी, अब
गुल्लक में क्या होता था, चेंज होती थी, अब तो चेंज भी खत्म हो गई है। जी हाँ। भिखारी भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ। तो बच्चों के लिए क्या कैसे आपने ये गढ़ी किताब की स्कर्टिंग अराउंड ऑल दीज इश्यूज, कैसे बच्चों तक वो बात पहुंचाएं जो कि हमारे माँ बाप और हमारी दादी नानी हम तक पहुंचा सके? मैं मृणाल जी ये अर्ज करूं कि इसमें ये शायरी या कहूँ शायरी या मीटर या उसकी धुन संभालने से ज्यादा कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं अपने दौर का जो कल्चर है, अपने दौर की जो सभ्यता है, ये तहजीब जिसमें मैं जी रहा हूं, ताकि वो महफूज करता रहूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने एक गुल्लक पैदा कर ली, एक गुल्लक आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जब आपको कमी महसूस हो किसी को, कहीं बाप दादा के कल्चर, पुराने कल्चर की कहानियां, पुरानी कहानियां याद आए, तो आप वो मेरी रखी हुई गुल्लक को जब चाहें तोड़ लें और उसमें से निकाल के उस नकदी को इस्तेमाल कर लें। आप, वो आपका हिस्सा है। मैं इन लोगों के लिए आज के दौर में ये कोशिश करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आपने बीड़ी जलाए ले तो सुन लिया, लेकिन बीड़ी जलाए ले की बाकी लाइनें जरा सोच के देखिए। पूरा जमींदाराना तहजीब जो उस वक्त की है, उस दौर की, वो उसमें उन लाइनों में संभाली हुई है। वो जो इलायची खिलाए के करीब आ गया, कचहरी जो आपकी है वो आज की कोर्ट्स नहीं है, वो पटियाला हाउस जी हाँ, वो उसमें जो है कचहरी में हमका बुलाइली हो रहे, तो वो कचहरी कोर्ट की नहीं है, वो कचहरी है वो जिसे दीवान खाना जमींदार हैं, हाँ, उनको कचहरी कहा करते थे। छम्मू भटियार इनकी हाँ, नालिश हुआ करते थे। जी। हाँ, हाँ। तो कोशिश ये है कि उनमें मैं वो अपनी तहजीब का दौर जिसमें से जिया हूं और उस तहजीब के दौर में जिसमें दाखिल हो रहा हूं इन बच्चों के साथ, और जहां इनको उंगली पकड़ के लाया था, अब इन्होंने मेरी उंगली पकड़ ली है, जहां लेके चलते हैं मैं उसको महफूज करता रहूं। ये एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताऊं कि जब सल्तनतें गिरती हैं तो गुलजार साहब और हमारे जैसे लोगों के जो बोलियों में, भाषाओं में लिखते हैं, हमारे लिए हाथ पैर फैलाने की गुंजाइश निकल आती है। बहुत अच्छी क्योंकि बात जब मार पड़ती है तो माँ याद आती है। बहुत अच्छी बात और कही है, बहुत अच्छी बात। गाली देना हो या हाय कहना हो तो मातृभाषा में ही दी जाती है। तब फिर लोग जड़ें टटोलते हैं। अब जिस बच्ची ने इतना सुंदर इलस्ट्रेट किया है वो कनाडा में बैठी हुई है। जाहिर है कहीं तो मिट्टी खींचती है आपको, इसलिए आप अपनी भाषा की खोज कर रहे हैं। और इसको मैं सिनिकल तरीके से नहीं लेती हूँ, ये एक बहुत मानवीय खोज है। 1757 के आसपास आगरा में नज़ीर हुए थे, एक शायर हुए थे जिन्होंने लैला की उंगलियां हैं, मजनू की पसलियां हैं जैसी लिखी, रीछ के बच्चे पर कविता लिखी। हाँ। और चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार लिखी। उसके अलावा उस जमाने में, और उसके साथ ही कज़ाक अजल का नक्कारा जैसी कविता लिखी कि तन सूखा पीठ हुई कुबड़ी घोड़े पर जीन धरो बाबा। वो बाजार की भाषा थी और उर्दू का लड़कपन, बागपन उसमें खिलता है। फिर 1857 में जब दिल्ली सल्तनत गिर रही थी तो आपके फेवरेट गालिब उपजे। गालिब ने फारसी में भी लिखा, लेकिन आज जो गालिब हमको याद आते हैं वो उर्दू के गालिब याद आते हैं जिन्होंने दिल्ली का दर्द बयां किया है। चली सिमत गैब से एक हवा की चमन का सुरूर जल गया, बस एक शाख निहाले गम कि जिसे दिल कहें वो हरी रही। जो एक शाख हरी रह जाती है वो गुलजार साहब हैं। जो सारी जलते हुए चमन में कोई एक शाख हरी रह जाती है कोपल फेंकने के लिए, गुल्लकें बनाने के लिए, वो गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब आपने बड़ा मादरी जबान का जहाँ आपने गालिब पर जो लिखा है, बहादुर शाह जफर और उसका जिक्र किया था, जरा वो बताइए। हाँ। अच्छा, मजे की बात एक और ये है कि जो दो बड़े बादशाह बेदखल किए गए अंग्रेजों ने 1857 में, तो मैं सोच रही थी कि बुढ़ापे में सोचते बहुत हैं लोग। मैं सोच रही थी कि जब इतने बड़े बादशाह बेदखल हुए, जबकि राजकाज की पूरी भाषा फारसी थी, तो बहादुर शाह जफर ने गाया, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। और उधर अवध के बादशाह जब भेजे गए कलकत्ता, तो वो ये कहते हुए गए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। वाह वाह, क्या बात। तो बोलियां उर्दू हिंदी, जब तक उर्दू और हिंदी बोलियों से जुड़ी रहीं,
उनसे रस लेती रहीं, उनकी राह पर बांकपन से चलती रहीं। उनमें सब था, उनमें प्राण थी, उनमें एनर्जी थी, उसमें इनोवेटिव पावर था, उसमें नई नई तस्वीरें, नए नए बिंब, नए नए मुहावरे गढ़ने का चाव था। लेकिन जब वो राह कट जाती है और हिंदी और उर्दू मुसलमान और हिंदू की भाषा बन जाते हैं, तो फिर वो जाहिर है, फिर वो पॉलिटिक्स से गलबैयाँ डाल देते हैं और फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाते हैं। तो गुलजार साहब ने ये काम किया है जो वो कह रहे हैं। मैं इसकी अहमियत फिर से आपके सामने रख रही हूँ, इसीलिए कि जब कभी सल्तनतें गिरती हैं उस वक्त वो जगह निकल आती है हमारे जैसे लोगों के लिए कि ये चीज़ें दर्ज कर जाएं आने वाली नस्लों के लिए कि ये ऐसा ऐसा होता है। और आज से आप मान लीजिए 100 साल के बाद जब इस ज़माने का इतिहास लिखा जाएगा तो नज़ीर गुलजार साहब की होगी, रियलिटी टीवी की नहीं होगी। इतना बहुत बहुत शुक्रिया आपका इज्जत भाई का। सच तो ये है कि मैं आप सबका होमवर्क मैं दर्ज करके जा रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ और मैं होमवर्क वो कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज बुक अपनी तैयार मिलेगी जिस वक्त आपको जरूरत। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी गालिब वाली नज़्म जरा पढ़ दीजिए, ये वाली। माइक अब सुनाई दिया? जी हाँ, आप जरा आपका माइक। अच्छा ठीक है, एक दफा ट्राई कर लीजिए। इरशाद।